हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन अ वेरी इजी वे. सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? Blood pressure is the lateral pressure which is exerted by the blood on the walls of the blood vessels. Systolic blood pressure, it is the blood pressure during the contraction of the heart. It is 120 mmHg. And the diastolic blood pressure, the blood pressure during the relaxation of the heart, which is 80 mmHg. So normal blood pressure is 120 by 80 mmHg. Next topic is factors regulating the blood pressure. Blood pressure is equal to cardiac output into the peripheral resistance. Cardiac output क्या होता है? The amount of the blood which is ejected from the ventricles per minute. It is known as the cardiac output, and cardiac output is equal to stroke volume into the heart rate. Stroke volume is the amount of the blood which is ejected per beat. It is 70 ml into the heart rate, that is 72. So the cardiac output is 5 liter. And it also depends upon the blood pressure depends upon peripheral resistance. Peripheral resistance is the resistance exerted by the walls on the blood vessel against the flow of the blood. कि जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं वो फ्लो ऑफ द ब्लड के अगेंस्ट जो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जो रेजिस्टेंस एग्जर्ट करती हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस. और जो ब्लड प्रेशर होता है वो कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इंटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. सो कार्डिक आउटपुट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है. More the stroke volume, more will be the cardiac output. It also depends upon the blood volume. More is the blood volume, more will be the cardiac output. More is the heart rate, and more is the cardiac output. It also depends upon the force of the contraction of the cardiac muscle. More the force of the contraction, more will be the cardiac output. And the peripheral resistance depends upon the diameter of the blood vessel. It depends upon the elasticity of the blood vessel. More is the elasticity of the blood vessel, the less is the peripheral resistance. It depends upon the viscosity of the blood. More is the viscosity of the blood, more will be the peripheral resistance to the blood. So now we will study about the drugs used in the hypertension, which are diuretics. The diuretics हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. वन इज़ द थियाजिड्स, अदर इज़ द लूप डायूरेटिक्स, एंड द थर्ड इज़ द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स नॉर्मल फिजियोलॉजी, जब हमारा जो ब्लड होता है वो ग्लोमेरुलस तक पहुंचता है, फिर जो फिल्ट्रेट बनता है वो पीसीटी से, देन लूप ऑफ द हैंडले, और फिर डीसीटी से पास आउट होता है. नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि जो डीसीटी होती है वहाँ पर सोडियम एंड वाटर के चैनल्स होते हैं, वहाँ पे उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हमारा जो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, इसलिए जब हम डायूरेटिक्स देते हैं वो जो वाटर चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, एंड मोर water and the sodium get excreted. Therefore the plasma blood volume decreases and the blood pressure also decreases. Number first diuretic used are thiazide diuretics. Thiazide diuretics, for example chlorothiazide, hydrochlorothiazide, and chlorthalidone. They inhibit the sodium and chloride co-transporter in the DCT, and which causes the blockage of the sodium and the water reabsorption. Therefore more and more amount of the sodium is excreted and it causes the natriuresis. And in addition to this, the potassium is also excreted, so it also causes the hypokalemia in the blood. And next are loop diuretics. Loop diuretics, they inhibit the sodium, potassium and chloride co-transporter in loop of the Henle. इसलिए क्या होता है, सोडियम की एक्सक्रीशन होती है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन होती है, तो सोडियम एंड पोटेशियम की प्लस वाटर की भी एक्सक्रीशन हो जाती है, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू द हाइपोकैलेमिया. Number third type of diuretics are potassium sparing diuretics. It inhibit the sodium potassium ATPase in the cortical collecting duct. In normal physiology, the ATPase causes the absorption of the sodium with the excretion of the potassium, but since now it is blocked, therefore the sodium is not reabsorbed and the potassium is retained in the blood. Therefore the amount of the potassium in the blood increases and it may cause the hyperkalemia. So we have seen that thiazide diuretic and loop diuretic causes the hypokalemia, and the potassium sparing diuretics causes the hyperkalemia. The blood pressure first decreases. Why? Because the diuretics जो हैं वो सोडियम की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से वाटर की एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगी और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाता है. लेकिन हम देखते हैं कि 6-7 हफ्ते बाद जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है उस टाइम तक जो प्लाज्मा की जो वॉल्यूम होती है वो नॉर्मल हो जाती है बिकॉज ऑफ द कंपेंसेटरी मैकेनिज्म. उस टाइम पर जो ये डायूरेटिक्स होते हैं दे कॉजेज द डिक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज इन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस वाजोडाइलेशन की वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है. सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द वाजोडाइलेशन? इट इज़ बिकॉज ऑफ नाइट्रियूरेसिस.
सोडियम एंड द वाटर लॉसेस फ्रॉम द वेसल वॉल, जब जो ब्लड वेसल की वॉल्स होती हैं वहाँ से सोडियम और वाटर का लॉस होता है, इसकी वजह से जो वेसल की वॉल है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है और उसकी वाजो डायलेशन हो जाती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है. What are the side effects of the diuretics? It causes the hypokalemia. We have seen and discussed in detail that thiazide and loop diuretics causes the hypokalemia. It also decreases the insulin. Therefore, the carbohydrate intolerance take place. It causes the dyslipidemia and hyperuricemia. And potassium sparing diuretics, they causes the hyperkalemia we have discussed. Now we will study about the inhibitors of RAS system as antihypertensives. जब भी नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है देन रेनिन इज सिक्रेटेड बाय द जेजी सेल्स. ओके, और रेनिन क्या करता है कि जो एंजियोटेंसिनोजन था ना लीवर के अंदर उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है. फिर एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होती है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करती है. एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है एक पोटेंट वाजो कंस्ट्रिक्टर होता है जो कि वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है. प्लस ये अल्डोस्टेरोन की भी सिक्रेशन करवाता है जो सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन कराता है डीसीटी से और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है. प्लस एंजियोटेंसिन सेकेंड सेल ग्रोथ करवाता है, फाइब्रोसिस, एपोप्टोसिस एंड रीमॉडलिंग ऑफ मायोकार्डियम, वेस्कुलर मसल, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी भी कराता है. सो द ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि अगर हम एंजियोटेंसिन सेकेंड की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था ना हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए होते हैं हमारे पास एस इनहिबिटर्स फॉर एग्जांपल इनालाप्रिल. ये क्या करते हैं कि ब्लॉक कर देते हैं कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड, क्योंकि एस एंजाइम में कन्वर्जन कर रही थी तो हम एस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं. एंजियोटेंसिन सेकेंड की प्रोडक्शन नहीं होगी, इसलिए जो इसकी वजह से वाजो कंस्ट्रिक्शन हो रही थी वो भी प्रिवेंट हो जाएगी. एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके इस इनहिबिटर्स के? नंबर फर्स्ट इज ड्राई कफ, बिकॉज जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है ना वो ब्रेडिकाइनिन की डिस्ट्रक्शन कर देता है. अब ब्रेडिकाइनिन की डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी और ब्रेडिकाइनिन की वजह से लंग्स के अंदर ड्राई कफ हो जाता है. ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, एंजियोएडिमा एंड हेडेक. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ इनहिबिटर्स आर एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर्स, फॉर एग्जाम्पल लोसार्टन एंड वल्सार्टन. ये क्या करते हैं कि जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए अब एंजियोटेंसिन सेकेंड प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, and the effect is same as that of the ACE inhibitors. So ACE inhibitors and AT1 receptor blockers, they are the first line of the drugs which are used in the hypertension. And the adverse effect of AT1 receptors include headache, nausea and diarrhea. नंबर थर्ड टाइप इज अगर हम रेनिन की जो रेनिन है उसको ही इनहिबिट कर दें, फॉर एग्जांपल एल्स्काइरिन, ये ऐसी ड्रग है जो रेनिन को ही इनहिबिट कर देगी. अगर रेनिन इनहिबिट होगा तो वो एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगी एंड द इफेक्ट इज सेम, द ब्लड प्रेशर इंक्रीज इज प्रिवेंटेड. एंड एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड डिस्पैप्सिया. डिस्पैप्सिया मीन्स इनडाइजेशन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है एंड हेडेक एक्सेट्रा. सो दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ RAS system. Now third type of drugs are the drugs that decreases the peripheral resistance or the cardiac output. Number first are vasodilators. Vasodilators हमारे पास होते हैं फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. ये दो टाइप के होते हैं, dihydropyridine and the non-dihydropyridine. Calcium channel blockers, they are used as the first line of the drugs in hypertension because of their high efficacy and better tolerance. तो जो dihydropyridine होते हैं फॉर एग्जांपल amlodipine and nifedipine, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं द एल टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स इन द ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स इनहिबिट हो जाते हैं देन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी उनकी, इसलिए तो हमारे पास क्या होगा, इट कॉजेज द वाजोडाइलेशन. Okay, and the blood pressure get reduced. For example, the adverse effect include the dizziness, flushing means the redness of the face and the headache. And the non-dihydropyridine includes the verapamil and the diltiazem. They are non-selective inhibitors of L type of calcium channels. It means ये हमारे पास जो blood vessels के ऊपर कैल्शियम चैनल्स होंगे उनको भी इनहिबिट करेंगे, प्लस जो हार्ट के अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो नोडल सेल्स के अंदर होते हैं उनको भी इनहिबिट कर देते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स की वाजोडाइलेशन हो जाएगी, मीन्स पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड वेसल गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, एंड हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है,
जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी, और नोडल सेल के कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज की वजह से ऑटोमेटिसिटी और कंडक्टिविटी जो होती है हार्ट की वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव ब्रेडिकार्डिया हो जाता है एंड कार्डियक कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। इट मीन्स जो नॉन हाइड्रोपैरिडियंस होते हैं ना, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। Therefore, we prefer the dihydropyridines as compared to non-hydropyridines. Number next is the arteriolar vasodilator. For example, hydralazine. ये क्या होते हैं कि जो arterioles होते हैं उनकी क्या कराते हैं, उनकी vasodilation करवा देते हैं, उनकी dilation करवा देते हैं, ठीक है। Peripheral resistance of arterioles get reduced, therefore the blood pressure get reduced, and they are the preferred drug during the pregnancy. Hydralazine. The side effects include the flushing, headache, dizziness, nasal stiffness, etc. Number third are arteriolar and the venous vasodilator. For example, जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होती है ना, ये जो आर्टेरियोल है उसकी भी वाजोडाइलेशन कराती है, प्लस ये जो वेन्स होती हैं उसकी भी वाजोडाइलेशन कराती है। जब हमारे पास आर्टेरियोल की वाजोडाइलेशन होगी, ठीक है, तब क्या होगा कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेन्स की वाजोडाइलेशन होगी तो जो वीनस रिटर्न जा रहा है ना हार्ट के ऊपर वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज़ अ रैपिडली एक्टिंग ड्रग एंड इट इज़ ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 to 4 मिनट काम करती है, ठीक है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस reduces the peripheral resistance because of arteriolar dilation and reduces the cardiac output because of venous dilation, ठीक है। जो नाइट्रोप्रोसाइड होती है एंडोथेलियल सेल्स क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज इफेक्ट्स। यूज्ड इन द हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर हम यूज़ करते हैं। द साइड इफेक्ट्स इंक्लूड पैल्पिटेशंस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस, and it may also cause disorientation and the lactic acidosis because of the toxic metabolite including the cyanide which is released from the nitric oxide. Next are sympathetolytics as the antihypertensive drugs. सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है कि हमारी जो हार्ट रेट होता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो अगर हम सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर दिया जाए तब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम। सो सेंट्रल सिंपैथेटोलाइटिक्स इंक्लूड क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन क्या करता है, इट स्टिमुलेट द प्री साइनेप्टिक अल्फा-2 रिसेप्टर्स इन द ब्रेन स्टेम। जो अल्फा-2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो नोर एपिनेफ्रिन का रिलीज़ होता है ना वो कम हो जाता है, एंड नोर एपिनेफ्रिन का रिलीज़ अगर कम होगा देन जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो भी कम हो जाएगा। एंड द साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड फॉर एग्जांपल जो क्लोनिडीन होता है अगर हम उसको विड्रॉल कर देते हैं एकदम से तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो नोर एपिनेफ्रिन का रिलीज़ है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक आउटफ्लो एकदम से बढ़ जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगा एंड इट मे कॉज द टेकिकार्डिया। सो दिस इज़ नॉट मच प्रेफर्ड ड्रग because of the side effects. Next are alpha adrenergic blockers, for example prazosin and doxazocin. ये alpha-1 blockers होते हैं। alpha-1 रिसेप्टर्स हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो क्या करते हैं कि वाजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर हम alpha-1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तब क्या हो जाता है, वाजोडाइलेशन हो जाता है और बिकॉज ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज एंड इट मे कॉज द पोस्चरल हाइपोटेंशन एंड वी यूज़ दीज ड्रग्स इज एड ऑन थेरेपी एज एडजुएंट्स। कभी भी ये द प्राइमरी ड्रग्स हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट आर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल एटिनोलोल एंड मीटोप्रोलोल। ये बीटा-1 ब्लॉकर्स होते हैं। हमारे हार्ट के ऊपर बीटा-1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो अगर हम बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें देन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। So beta adrenergic blockers, they block the beta-1 receptors on the heart, therefore the cardiac output decreases, and they also inhibit the beta receptors on the kidney, therefore the production of renin decreases and the angiotensin second also decreases. नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं, अल्फ़ा-1 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं प्लस बीटा-1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देते हैं एंड देयरफॉर इट कॉजेज द डिक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज इन रेनिन एंड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड ईजी वीडियोज़। थैंक यू।